You all to the Youth Parliament. We'll start with the first list in the business today, the oath or affirmation. Secretary General, please proceed. Yes, ma'am. Ms. Monica, who stands elected from the Samastipur constituency of Bihar, will now take the oath or affirmation. Ms. Monica. Ma'am, do you want to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Hindi, please. मैं मोनिका, जो युवा संसद की लोकसभा की सांसद निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। We are confident that your contribution will be fruitful to both the House and the country. Ms. Prachi, who stands elected from the Ahmedabad constituency of Gujarat, will now take the oath or affirmation. Ms. Prachi. Ma'am, do you want to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Gujarati, please. હું પ્રાચી યુવા સંસદના નીચલા ગૃહના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા પછી ભગવાનના નામે શપથ લઉં છું કે હું કાયદા દ્વારા સ્થાપિત ભારતના બંધારણમાં સાચો વિશ્વાસ અને નિષ્ઠા રાખીશ, જેને હું સમર્થન આપીશ. ભારતની સાર્વભૌમત્વ, અખંડિતતા અને હું જે ફરજમાં પ્રવેશવાની છું તે હું નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવીશ. We are confident that your contribution will be fruitful to both the House and the country. Members, at this stage of proceedings, it is my sad duty to inform the House of the demise of former Japanese Prime Minister Mr. Shinzo Abe. He was the longest-serving PM of Japan, instrumental in strengthening India-Japan bilateral relations. He was born on 21st September 1954 and died on 8 July 2022. He was also awarded with Padma Vibhushan and Netaji Award in 2019 and 2021 respectively. Honorable Prime Minister. माननीय सभासदों, मैं श्री शिंजो आबे जी के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
भारत एवं जापान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। भारत ने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। Leader of Opposition. माननीय अध्यक्ष महोदया, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण, आप सभी द्वारा प्रदान की गई श्रद्धांजलि में मैं खुद को संयोजित करता हूँ। श्रीमान शिंजो आबे जी का निधन पूरे विश्व के लिए एक महान क्षति रही है। Now I request the House to stand for a while in silence to express our deep sorrow. Secretary General to send the message of condolence to the bereaved family. Prime Yes, ma'am. Minister to introduce new ministers. I, on the behalf of Speaker Ma'am, would like to introduce some new ministers. Railway Minister Ms. Payal Gupta, Minister of Finance Mr. Chantri, Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Mr. Dimple, Members, the next item in the list of business is the questions. The question hour commences. Question number 101, Mr. Lovepreet. माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं खाद्य पूर्ति मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस तथ्य से अवगत भी हैं कि टमाटर का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 200 रुपए तक हो चुका है। टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए क्या हमारी सरकार ने टमाटर के निर्यात पर रोक लगाने का विचार किया है या नहीं? टमाटर की बढ़ती कीमतों को सीमित करने में क्या हमारी सरकार सक्षम भी है या नहीं? यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? Minister of Agriculture and Farmer Welfare. माननीय अध्यक्ष जी, टमाटर के मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। टमाटर की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार कई प्रकार के उपाय कर रही है। राज्य सरकारों के सहयोग से जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापों की कार्रवाई जारी है, जिससे देश में टमाटर की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर कई सरकारी स्थलों पर टमाटर बेचने का निर्णय किया है। सरकार पड़ोसी देशों से टमाटर के आयात पर विचार कर रही है, जिससे देश में टमाटर की आपूर्ति बढ़ने से कीमतें कम हो सके। महोदया, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में इस वर्ष टमाटर की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले 3-4 महीनों में टमाटर की कीमतों में तेजी से कमी आएगी। महोदया, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत टमाटर के निर्यात पर रोक लगा दी है। Any supplementary question? माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा कृषि एवं खाद्य मंत्री से यह प्रश्न है कि मॉनसून के दौरान टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियों की फसलें भी खराब हुई हैं, जिससे किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। फसलें खराब होने से सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या इस समस्या के निपटारे के लिए कोई प्रावधान है जिससे किसानों को भी नुकसान न हो? माननीय अध्यक्ष महोदया, यहाँ बैठे सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि टमाटर एवं सब्जियाँ कटाई के तुरंत बाद खराब होने लगती हैं। इन्हें खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में संग्रहित किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से सब्जियों की खेती छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसानों द्वारा की जाती है, जिनके लिए विशेष कोल्ड स्टोरेज तैयार करना महंगा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए PAU ने जीरो एनर्जी कूल चैम्बर्स की सिफारिश की है। Next question number 102, Miss Sakshi. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या यह सच है कि देश में बच्चों के प्रति अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार जारी किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है?
Minister of Home Affairs, माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराधों से संबंधित संख्याई आंकड़ों को अपने प्रकाशन क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित और संकलित करवाता है। यह प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 तक उपलब्ध है और बच्चों के प्रति अपराधों से संबंधित विभिन्न अपराध शीर्षों के तहत दर्ज किए गए मामलों का विश्लेषण करने से यह मालूम हुआ है कि इन आंकड़ों में कोई एक समान प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। any supplementary question? हमारे सज्जन गृह मंत्री जी तो अपना उत्तर दे चुके, पर माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनके इस उत्तर से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में वृद्धि आई है, उसके कारणों को क्या ये पता लगा पाए हैं? यदि हाँ, तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। भारत संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और राज्य सरकार के कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत हमारी सरकार इन अपराधों से लड़ने में सक्षम है। माननीय, राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देती है, जिसमें बच्चों के अपहरण के मामले में, लापता बच्चों और नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज करवाना और बच्चों के प्रति अश्लील सामग्री के संबंध में समय समय पर परामर्शी पत्र जारी किए जा रहे हैं। Next question number 103, Miss Anshika. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक व प्रौद्योगिकी मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार का ध्यान इस बात पर आकर्षित हुआ है कि आज की युवा पीढ़ी साइबर अपराधों के प्रति अधिक असुरक्षित है? यदि हाँ, तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार के पास ऐसे अपराधों को नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम संबंधी कोई योजना है? यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? Minister of Electronics and Technology. माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर स्पेस के बढ़ते उपयोग के साथ युवा पीढ़ी भी साइबर अपराध के प्रति संवेदनशील होती जा रही है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य संघ, राज्य क्षेत्र साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने व युवा पीढ़ी की रक्षा करने के लिए तंत्र विकसित करने हेतु प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य संघ, राज्य क्षेत्र की पहलों में सहायता प्रदान करती है। Next question number 104, Miss Ria. खून किसी का भी गिरे यहाँ, खून किसी का भी गिरे यहाँ, नस्ल आदम का खून है, बच्चे से हृदय पार के ही सही, पर किसी के दिल का सुकून है, पर किसी के दिल का सुकून है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण हो रहे मौतों और अशांति के माहौल में कोई कमी आई है या नहीं? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के संदर्भ में सरकार की क्या योजना है? Minister of Defense. माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रश्न के पहले हिस्से के संदर्भ में मैं कुछ नंबर हैं जो कि सदन में बैठे सदस्यों के समक्ष रखना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में 2017 में 417, 2018 में 255, 2019 में 244 और 2020 में 229 हो गए हैं। मई 2021 से अगस्त 2022 तक ऐसे मामलों में 177 नागरिक एवं 406 सुरक्षा
बलों की शहादत हुई है। अगस्त 2021 से नवंबर 2022 तक ऐसे मामलों में 87 नागरिक एवं 99 सुरक्षा बलों की शहादत हुई है। महोदया, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में इन मामलों में कमी आई है और आतंकी अभी तक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। Now the point number 2. Regarding Union Government strategy to give status of Union Territory to Jammu and Kashmir. The government is very minutely monitoring the situation in Jammu and Kashmir. Everything is fine there, but a few people have been trying to create an atmosphere of unrest in the valley. The government is tackling any such situation along with the army. The election commission is going to proceed the election process very soon. After the election, the situation will be monitored and Jammu and Kashmir will be given status of Union Territory on appropriate time. Next question number 105, Miss Anshul. Honorable Speaker Madam, जे पुत्तर हटोंदे नहीं दिखते, तिया ना मिलन बाजार कुड़े, ऐ सौदा सच्चा सौदा है, ऐ नगद ना मिले उधार कुड़े। Will the minister be pleased to state A, whether it is a fact that sex-selective abortions that happen in small clinics and nursing homes which are operated illegally, if so, the details thereof. B, whether it is also a fact that the Medical Council of India has asked all the concerned to inform the Medical Council about any unethical act or medical misconduct, and if so, the details thereof. Minister of Health and Family Welfare. Honorable Speaker, ma'am, the government is implementing the comprehensive legislation, the Prenatal Diagnostic Technique Act 1994, and the rules frame thereunder, the prohibition of sex selection before or after the conception regulation by the prenatal diagnostic technique and prevention of their misuse of sex determination leading to female feticide. The Medical Council of India has issued instructions to principal of all medical colleges, director generals, all state medical councils and all principal health secretaries to take action regard to any complaint received against the medical partition for accepting commission, prescription for unnecessary ultrasonography investigation, illegal abortions, nexus with drugs companies, etc. As per the instruction, the concerned state medical council should take immediate action and even suo moto and notify the action taken by them in the local newspaper and put it into the website under intimation to the Medical Council of India. Further, the government has recently launched Beti Bachao Beti Padhao scheme to curb the menace of female feticide and balance the declining sex ratio. Next question number 106, Miss Simrit. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश के पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्र हेतु खेल संसाधनों के विकास के लिए कोई योजना शुरू की है? यदि हाँ, तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है? क्या सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु कोई नई योजनाएं बनाई है? यदि हाँ, तो मैं खेल मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि इन योजनाओं को कब तक लागू किया जाएगा? Minister of Sports and Youth Affairs. माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल राज्य का विषय होने के कारण देश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खेलकूद खेल संस्थानों के विकास सहित खेल के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से खेल संघ क्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों की पूर्ति करती है। केंद्र सरकार जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश में खेल संस्थानों को बढ़ावा देती है। वर्ष 2016-17 में इस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया स्कीम के तहत लाभान्वित अधिकांश खिलाड़ी देश के ग्रामीण, पिछड़े, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित।
Next question number 107, Miss Gulman. Honorable Speaker Madam, will the Minister of Education be pleased to state that A. How the education system has changed after the implementation of National Education Policy 2020. B. What are the benefits of giving education in regional language? Minister of Education. Honorable Speaker Madam, as the National Education Policy 2020 is in the implementation phase, special emphasis has been given on early childhood care and education. The 10+2 structure is to be replaced by a 5+3+3+4 structure corresponding to ages 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively. The new system will have 12 years of schooling with 3 years of Anganwadi or preschooling. The new system will cover 4 stages. First, foundational stage in 2 parts. 3 years of Anganwadi or preschooling plus 2 years in primary school. In grades 1 to 2 covering ages 3 to 8. Second, preparatory age. In grades 3 to 5 covering ages 8 to 11. Third, middle stage. In grades 6 to 8 covering ages 11 to 14. And fourth, secondary stage. In 2 parts. 9th and 10th in the first and 11th and 12th in the second, covering ages 14 to 18 years respectively. Students will have increased flexibility and choice of subjects so that they choose their own subjects according to their talents and interests. There will be no rigid separation between arts and science, between vocational and academic streams. The objective is to give equal emphasis on all subjects. By 2025, at least 50% learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education. Now, I would move on to second part of the question regarding the benefits giving education in regional language. Madam, under the National Education Policy 2020, the medium of instruction until at least grade 5, but preferably till grade 8 and beyond, will be the home language, mother language, local language and regional language. The positive aspects of giving education in regional language are subject-specific improvement. Any supplementary question? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं? ख तथा सरकार की ओर से इस संदर्भ में क्या नई योजनाएं एवं प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बैठे अपने साथियों का ध्यान इस संदर्भ में एक और घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। जहां पहले मैं पूर्वोत्तर के किसी नौजवान या महिला से मिलती थी तो उनका कथन होता था, भारत सरकार वो तो हमें कब की भूल चुकी है, क्योंकि उनके पास ना तो हमें देने के लिए रोजगार है और ना ही उच्च शिक्षा। लेकिन आज मेघालय जैसे पूर्वी राज्य का वीमेन एनरोलमेंट रेशो 51.8% है, जो यह दर्शाता है कि सरकार द्वारा की गई नीतियां कारगर साबित हुई हैं। Next question number 108, Miss Shabni. Honorable Speaker Ma'am, will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state A. Whether there has been an increase in the number of respiratory patients due to increasing pollution in the city of Delhi. B. If so, the details thereof and the number of persons died due to the respiratory
district wise, union territory wise. Minister of Environment, Forest and Climate Change. Respected Speaker Madam, there is no conclusive data available to establish a direct correlation of death or disease exclusively with air pollution. Air pollution is one of the many factors affecting the respiratory ailments and other associated diseases. Human health is impacted by a number of factors which includes the food habits, occupational habits, socio-economic status, medical history, immunity, heredity, etc. of the individuals apart from the environment. Indian Council of Medical Research under the Ministry of Health and Family Welfare along with the Public Health Foundation of India and Institute of Health Metrics and Evaluation have conducted a study entitled India, Health of the Nation State, the India State Level Disease Burden Initiative, which was published in the year of 2022. The study report provided the distribution of diseases and risk factors across all the states of the country from the year 1990 to 2022. The 5 major leading risk factors includes the child and maternal malnutrition, dietary risks, air pollution, high systolic blood pressure and high fasting plasma glucose. Any supplementary question? माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा वन एवं मौसम विभाग मंत्री जी से है प्रश्न है कि क्या सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अक्टूबर से दिसंबर महीने के दौरान बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए कोई सर्वेक्षण आयोजित किया है? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सख्त कदम उठाया है? यदि हाँ, तो महोदया मेरा मंत्री जी से है प्रश्न है कि उक्त उद्देश्य के आवंटित व उपयोग की गई धनराशि का विवरण सहित ब्यौरा क्या है? Respected Speaker Madam, the major sources of air pollution in Delhi NCR and adjoining areas which aggravate during the winter months due to unfavorable meteorological conditions includes the vehicular pollution, the industrial pollution, dust from the construction sites and demolition activities, fires in landfills, biomass burning, etc. Source apportionment studies has been carried out for Delhi NCR by Terrier Ride, which was published in the year of 2018, which reveals that during winter months, the dust sector contributes about 27 and 30% respectively. The industrial sector contributes about 24 and 28% respectively. And finally, the transport sector contributes about 24 and 26% respectively. Consistent improvements has been observed in the air quality of Delhi due to the various steps that has been taken up by the Government of India to control the air pollution from various sources such as the industrial sector and transport sector. Improvement was noticed in the year of 2021 against the year 2016, which reveals that the number of good, very good and moderate days increasing to 197 against 108 in 2016, and the number of poor, very poor and severe days decreasing to 256 against 356 in 2016. Further, the continuous ambient air quality monitoring station data for Delhi reveals that the annual concentration of particulate matter PM that has declined since 2016. Next question number 109, Miss Anchal. माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महिला उत्पीड़न में विशेषकर यौन उत्पीड़न के मामले और उसके कारण देश में बड़ी हत्याएं व महिलाओं द्वारा आत्महत्या की जो दर बढ़ी है उसके विषय में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? और यदि हाँ, तो पिछले प्रत्येक वर्ष के दौरान अपराध और राज्यवार जैसे
कुल कितने मामले सामने आए हैं? ग, कितने आरोपियों को इन मामलों में इस अवधि के दौरान महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के लिए दोषी ठहराया गया है? घ, ऐसे मामलों में शामिल कितने लोगों को उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कारणों सहित बरी कर दिया गया है? ड, क्या ऐसा कानून लचीला है जिसमें सरकार की योजनाएं भी शामिल हैं? च, क्या सरकार इसे रोकने के लिए एक समिति गठित करने की योजना बना रही है? और यदि हाँ, तो हमें उन व्यक्तियों के नाम बताएं जिनके इस समिति में होने की संभावना है और जो लोग इस समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके प्रश्न का जवाब देते हुए कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहूंगी। जब चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, कि जब चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यानुसार पिछले 5 वर्षों में कुल कितने मामले दर्ज किए गए, कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और कितने व्यक्तियों को बरी किया गया, यह सब एनसीआरबी इसके प्रकाशन क्राइम इंडिया में संकलित और प्रकाशित करवाता है। प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 तक उपलब्ध है। माननीय, हमारे द्वारा बनाया गया कानून बहुत ही लचीला होता है, जिसमें सरकारी योजनाएं भी शामिल होती हैं। जैसे पहला, आपराधिक कानून। इसे मजबूत बनाने के लिए इसमें 2 बार संशोधन किया गया था, 2013 में और 2018 में, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले ऐसे ही नहीं जाने देती, उनको मृत्यु दंड और दंडात्मक प्रावधान बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें जेल भी हो सकती है। दूसरा, सभी आपात स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही मान्यता प्राप्त नंबर 112 रखा गया है। तीसरा, सुरक्षित शहरी परियोजनाएं पहले के चरण में 8 शहरों में लाई गई हैं, जो है बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई। चौथा, गृह मंत्रालय वित्तीय सहायता CCPWC के तहत प्रदान करते हैं। देश भर में यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए गृह मंत्री जी ने NDSO को 20 सितंबर 2018 में ही लॉन्च कर दिया था, और तो और वह अपने सुझाव भी रखते हैं जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध है। माननीय, वर्तमान में हमने ऐसी कोई भी योजना पर विचार विमर्श नहीं किया है। धन्यवाद। Any supplementary question? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह प्रश्न है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? अगर कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो सरकारी योजनाएं क्या हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिकाओं का इस देश की प्रगति में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने काफी सरकारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे पहली CBSE छात्रवृत्ति योजना, दूसरी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, तीसरी मुख्यमंत्री लाडली योजना, चौथी CBSE छात्रवृत्ति योजना एवं बालिका समृद्धि योजना, पांचवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और तो और माध्यमिक शिक्षा में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे ग्राम शिक्षा समिति बनाई जा रही है। अंत में मैं अपने पंक्तियों के माध्यम से इस सदन में बैठे वासियों को यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण में कोई कमी नहीं आने दे रही है। मेरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। महिलाएं मुर्दों को भी जिवा सकती हैं, हिमालय को भी हिला सकती हैं। इस देश में तो वो माएं हैं जो भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती हैं, जो भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती हैं। Next question number 110, Miss Vanshika. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पतन जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विशेष जल मार्गों की पहचान की है?
जो महत्वपूर्ण है पर्यटकों की दृष्टि से, और यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है? ख, क्या सरकार इन पर सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में सक्षम है, और यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है? और ग, क्या सरकार जलमार्गों की सुरक्षा के मामले में इच्छुक है? प्रतिष्ठित जीवन रक्षक संगठनों द्वारा देखभाल की जाती है, और यदि हाँ तो उसका तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है? Minister of Ports, Shipping and Waterways. माननीय अध्यक्ष महोदया, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा एक अध्ययन किया गया था। IWAI नवंबर 2022 में एक कार्य योजना और विस्तृत रोड मैप तैयार करने के लिए भारत में रिवर क्रूज पर्यटन के विकास के लिए, जिसने संभावित NW की पहचान की। पहचाने गए NW का विवरण है अनुकूलग्न 1 पर। सरकार ने 7 जून 2022 को सुरक्षा को अधिसूचित किया। अंतर्देशीय जहाज सुरक्षा नेविगेशन संचार नियम, अंतर्देशीय जहाज सुरक्षा उपकरण नियम, अंतर्देशीय पोत नियम 2021 के तहत कार्यनिवास की जिम्मेदारी, नियम और विनियम मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधीन है। सर्वेक्षण एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी नदियों, झीलों आदि में चलाने वाले अंतर्देशीय जहाज राज्य सरकार के अधीन है। Members, the next item in the list is papers to be laid. Minister of Family and Health Welfare. Madam, I beg to lay on the table a copy of the annual report of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2022-23, along with the audited accounts following notification for the Ministry of Health and Family Welfare, a copy of the review by the Government of Working of All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2022-23. Minister of Agriculture and Farmer Welfare. Madam, I beg to lay on the table the committee under Rule 3315 of the Rules of Procedure and consider the demands for grants 2020-21 of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. The committee took evidence of the representatives of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries at their sitting held on 23rd April 2021. The report was considered and adopted by the committee at their sitting held. Members, the next item in the list of business is the message from the upper chamber. Secretary General, please proceed. Ma'am, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provisions of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Upper House of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Payment of Gratuity Bill 2023, which has been passed by the Upper Chamber at its sitting held 22nd March 2023. Secretary General to lay on the table a copy of the bill as passed by the upper chamber. Ma'am, I lay on the House the Payment of Gratuity Bill 2023 as passed by the Upper Chamber. Members, at this stage of proceedings, I have to make a very important announcement. On my behalf and on the behalf of the honorable members, I extend my great pleasure and warm welcome to Her Excellency Ms. Diane Schmidt.
President of German National Assembly and also a member of German National Delegation. The other members of the delegation are Ms. Fiamma Kisida and Mary Nell. It is a high-powered delegation who arrived on 10 September 2023 for a 5-day visit. We wish them warm greetings and a fruitful stay in India. Calling attention motion. Calling attention motion, Mr. Lovepreet. माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी का ध्यान देश के विभिन्न प्रांतों में फैल रहे नक्सलवाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश के विभिन्न प्रांत 15 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित हैं। उनमें से बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह आंदोलन ज्यादा सक्रिय हैं। उनकी आक्रमण शैली निरंतर पेशेवराना होती जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, नक्सलीय गतिविधियां सन 2022 में 9 राज्यों से बढ़कर 15 राज्यों के 170 जिलों में सक्रिय हुई, जो कि एक अत्यंत चिंता का विषय रहा। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या गृह मंत्री जी इस मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं या नहीं? यदि हाँ, तो इसका विवरण दीजिए। गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए एक व्यापक 14 स्तरीय योजना तैयार की है, जिसमें माननीय संसद सदस्यों द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माननीय राज्य सरकार ने नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें पुलिस बल सशक्तिकरण और कुफरी तंत्र को मजबूत बनाने की सहमति प्रदान की गई। माननीय केंद्र पुलिस और राज्य पुलिस दोनों मिलकर नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए कार्य करेंगे, जिसमें पुलिस बल आधुनिकीकरण की वार्षिक लागत संशोधित कर वर्तमान वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। संशोधित योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों को 75% की निधि दी जाएगी और हमारे नक्सल प्रभावित जिलों को 2 करोड़ निधि विशेष घटक के रूप में दी जाएगी। मिस निशा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि नक्सलवाद को रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले वर्षों में हुए कुल नक्सलवादी हमले एवं इनके परिणाम स्वरूप हुई मौतों के विवरण से तो नहीं लगता कि इनका प्रभाव कम हुआ है। मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि आंकड़े तो ये कहते हैं नक्सलवादी हमले 1465 से बढ़कर 1610 एवं मृतकों की संख्या 566 से बढ़कर 690 तक पहुंच गई है। इनमें से कुछ हमले प्रशासनिक अधिकारियों, लोकसभा सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों तक पर भी हुए हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि नक्सलवाद उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावकारी कदम उठाए जा रहे हैं? मिस नेहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि गृह मंत्री जी के अनुसार नक्सलीय वारदातों को रोकने के लिए लगातार इतने अधिक प्रयत्न तो किए जा रहे हैं, परंतु आंकड़ों के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। पहले भी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर नक्सली हमला हो चुका है। गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि जिस देश के मंत्री
व उनके परिवार ही सुरक्षित नहीं है, उस देश के आम नागरिकों के लिए सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसका तथ्य संबंधी ब्यौरा दें। गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद की समस्या एक बुनियादी समस्या है। इस समस्या से केंद्र सरकार भी बहुत गंभीर मामले में है। केंद्र सरकार की समिति के द्वारा सशस्त्र बल विशेषाधिकार को खत्म करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई, जिससे आशा की नई किरण नजर आने लगी है। माननीय, नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने की जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की ही नहीं बल्कि राज्य सरकार की भी है। अतः मैं कहूं, दोनों मिलकर इसके ऊपर कठोर से कठोर कदम उठा रहे हैं। माननीय, और हाल ही में हुए बिहार बंद मृतकों के परिवार को 1 से 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए और भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके लिए जगह जगह 20 केंद्रीय सुरक्षित कंपनियां तैनात की गई। Now, the House will take up consideration to the National Sports Development Bill 2023 that already has been introduced in the last session. Minister for Sports and Youth Affairs, please. मैं बिल इंट्रोड्यूस करवाने से पहले कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहूंगी। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। Respected Speaker, sir, I have great pleasure and privilege to take up consideration on the National Sportsman Bill 2023. This will be milestone and a new chapter in the history of sports and games. Very purpose of this bill is to provide for development of sports in India, coordination of national teams for participation in international events, fair and transparent functioning of autonomous sports bodies and welfare for sports persons, promote ethical practices in sports, including elimination of doping practices, gender discrimination and women harassment. Salient features and provision of this bill are: the central government may by rules provide for such measures as may be necessary. The National Olympic Committee and the National Sports India in international federations shall comply with the provisions of this Act, holding preparatory coaching camps for the national teams for individual athletes, including core probable approved by the central government, undertake measure to promote drugs-free sport and eliminate fraud of age, gender discrimination and sexual harassment of women in sports. The Sports Authority of India shall submit annually a detailed report to central government for causing it to be laid before each House of Parliament. Every report under subsection shall contain an audited annual financial statement, a comprehensive report of activities and achievements against its approved annual plan, measures taken for coach development and measures taken. The National Anti-Doping Agency shall function as the apex body to implement anti-doping measures in sports in India, and its code as amended from time to time shall be applicable and binding upon all the national sports federation. The central government shall by notification establish an appellate sports tribunal to be known as the Sports Dispute Settlement and appellate to adjudicate any disputes amongst office bearers or members in the National Olympic Committee, between the National Olympic Committee and the National Sports Federation, amongst office bearers or members of a National Sports Federation. Honorable Speaker, sir, I am confident that all the honorable members of this House, irrespective of the party affiliation, will welcome this bill wholeheartedly and through. It will put forward
the eradicating of sports. I now move the National Sports Development Bill be taken into consideration. Motion moved. Ms. Divya. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि हमारे देश की जो राष्ट्रीय स्तर की टीमें हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलने के लिए प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षक की आवश्यकता है जो इस बिल के माध्यम से पूरी हो सकती है। खेल संघों में बढ़ते विवादों का निपटारा करने के लिए भी इस बिल में एपीलेट स्पोर्ट ट्रिब्यूनल का प्रावधान है जो विवादों का निपटारा करने में सहायक होगी। इस बिल में खेल संघों में बढ़ती वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए बजट के अंकेक्षण का प्रावधान है जिससे अनियमितताओं को रोकने में सहायता मिलेगी। इस बिल में खेलों के दौरान महिलाओं का शोषण एवं यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ भी दंडात्मक प्रावधान है जो महिलाओं में खेलों की सक्रियता को बढ़ावा देगी। इसीलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। Ms. Khushi. Honorable Speaker, sir, I strongly favor this bill for the development of sports activities in our country due to the following reasons. Number one, since it has provisions to promote the sportsman to win medals in international games and in Olympic games. Number two, it helps to control the use of unfair practice and drugs which are used by some sportsmen. Number three, it helps to eradicate the political influence over the games. This bill plays an important role in the selection of players and athletes on the basis of their performances. So I favor this bill. Mr. Lovepreet. माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का खंडन करता हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षक दोनों मिलने के बावजूद हमारे खिलाड़ी एथलीट्स अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए तो क्या इस बिल के पास हो जाने से वो अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे? यदि नहीं तो इस बिल के पास होने का कोई औचित्य नहीं है। इस बिल के पास हो जाने से जो खेलों में लिंग आयु के आधार पर भेदभाव होते हैं, महिला खिलाड़ियों का शोषण होता है, क्या वह रुक पाएगा? यदि नहीं तो इस बिल के पास होने का क्या फायदा होगा? आज हम जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं लेकिन ओलंपिक्स में आज भी बहुत पीछे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है? सारे संसाधन होने के बावजूद हम ओलंपिक्स में पदक नहीं जीत पाते और सारे पदक छोटे छोटे देश ले जाते हैं। तो क्या इस बिल के पास हो जाने से हम पदक जीत पाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आज भी खिलाड़ियों के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के चयन में आज भी भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो क्या इस बिल का पास हो जाना खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके चयन की गारंटी देगा? यहां उपस्थित सभी सदस्यगण ये भली भांति जानते हैं आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2015 जिसके तहत मैच फिक्सिंग, स्पोर्ट फिक्सिंग और सट्टेबाजी बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई, जिसके दौरान कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों को गिरफ्तार भी किया गया। सट्टेबाजी में तो राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और बीसीसीआई प्रमुख की भागीदारी पाई गई। तो क्या इस बिल का यह वर्तमान स्वरूप इस तरह की होने वाली मैच फिक्सिंग, स्पोर्ट फिक्सिंग और सट्टेबाजी को रोकने में कारगर साबित होगा? इस पर मुझे संदेह है। अगर इस बिल को इस दिशा में प्रभावी बनाकर पारित किया जाए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मिस्टर मेहुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। इस बिल में यह प्रावधान है कि खेल के दौरान ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों को रोका जाएगा, लेकिन सरकार इस बात की क्या गारंटी देती है कि ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही भी होगी? इस बिल में यह भी प्रावधान है कि कोई भी मंत्री खेल संघ का अध्यक्ष नहीं भी बनेगा, लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिज्ञ खेल संघ का अध्यक्ष ना बने, जिससे राजनीतिक प्रभाव खेल पर ना पड़े।
हाल ही में हुए भारतीय प्रीमियर लीग में कई वित्तीय अनियमितताएं और धांधलियां सामने आई है। क्या यह बिल उन्हें रोक पाने में समर्थ है और क्या यह बिल हमारे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जितवाने की गारंटी देता है? यदि नहीं तो मुझे इस बिल का कोई फायदा नजर नहीं आता। क्या यह बिल विभिन्न खेल संघों को सूचना के अधिकार 2005 के तहत लाएगा जिससे उनकी कार्य प्रणाली निश्चित की जा सके? Prime Minister, please. Respected Speaker, sir, having agreed with the content and provision of National Sports Development Bill 2023, I endorse this bill as a step to uplift the sports and games in our country. This bill has adequate provision to eliminate unethical practices including doping, fraud of age and sexual harassment in sports. This emphasizes on providing international level coaching to the national teams as well as individual athletes with a view to end the drought of medals in Olympics, Asian Games and Commonwealth Games by bringing up the performance at par with international level. This bill will bring all the sports and athletic federation including BCCI under the ambit of Right to Information Act 2005. That is why I humbly request all the members of House to support this bill and get it passed with remarkable majority. Thank you. Ms. Tejaswini. Honorable Speaker, sir, I am disagreeing with some provisions of this proposed bill, as many things which could help in the development of sports have been left in this bill. This bill cannot prevent financial irregularities which are presently going on in different sports federations like BCCI, Indian Olympic Association, Indian Hockey, and a large number of financial irregularities can be seen in the funding of IPL. Can this bill in its present form prevent such financial lacuna? Presently, many politicians are holding the post of chairperson of different sports federations. This cannot be considered a good practice. As far as the performance of the player and rules and regulations of sports are concerned, can this bill has enough provision to stop such practice? That's why I once again express unsatisfaction with this bill. Minister of Sports and Youth Affairs, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा इस बिल के संबंध में व्यक्त की गई आपत्तियों व संदेहों को ध्यानपूर्वक सुना है। मैं आपके माध्यम से इनको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि इन आपत्तियों व संदेहों का यह बिल निराकरण करेगा। जैसे इस बिल में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए खेल संघों के बजट का अंकेक्षण करने सहित पर्याप्त प्रावधान है। यह बिल मंत्रियों को खेल संघों में पद धारण करने से रोकने के लिए कारगर साबित होगा। यह बिल हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन सुधारने व शक्तिवर्धक सेवन पर रोक सहित सभी अन्य मुद्दों पर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरेगा। खेल संघों के बजट तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए इस बिल में सभी को 2005 के अंतर्गत लाने का प्रावधान इस बिल में है। IPL 8 के दौरान सामने आई मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग व सट्टेबाजी जैसी घटनाओं को इस बिल के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा उक्त घटनाओं में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर व पर्याप्त सजा के प्रावधान भी इस बिल में है। अतः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस बिल का तहे दिल से स्वागत करते हुए इसे सदन में प्रचंड बहुमत से पारित करवाएं। Now the question is that the bill to improve performance of our player and develop sports in our country at par with international standard
be taken into consideration. Those who are in favor may please say ayes. Aye. Those who are against, it may please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, the question is that clause 2 to 7 stands part of the bill. Those who are in favor may please say ayes. Aye. Those who are against, it may please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, the question is that clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those who are in favor may please say ayes. Aye. Those who are against, it may please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Minister of Sports and Youth Affairs, please. Sir, I move the bill be passed. Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor may please say ayes. Aye. Those who are against, it may please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and bill is passed. Now, House is adjourned to meet again on 17 September 2023 at 11 am.